ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 11th ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 14th ਨਵੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ +1 ਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਲੋਡ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਅ ਕਾਰ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਰੈਸਟ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 0। ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਟ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ 144 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ SI ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਬੱਚੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟਸ ਐਂਡ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5/18। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ ਇਨ ਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਟ ਕਵਰ ਬਾਈ ਅ ਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ, v = u + at। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ v² - u² = 2as। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਥਰਡ ਇਜ਼ s = ut + ½ at²। ਹੁਣ ਦੇਖੋ s ਪਤਾ ਕਰਨਾ, u ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਐਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ v = u + at। ਸੋ v = u + at। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ a, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 20। ਸੋ 40 = a × 20। 21 × 20, 22 × 40। ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਬੱਚੇ ਯੂਨਿਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਫ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ s = ut + ½ at²। ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਟਰਮ 0 ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ 20। 20 × 20, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 2 2 4 400 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 400 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਈ 400 ਮੀਟਰ। ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਸਟੋਨ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 14 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ u ਗਿਵਨ ਆ 14 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ।
ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 0। ਫਾਈਂਡ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਡ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਏਸੈਂਟ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਹਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, v² - u² = 2as। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 0, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 14² = 2। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਆ 9.8 ਤਾਂ 9.8 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਗਿਵਨ ਆ ਹੁਣ 9.8 ਤਾਂ 9.8 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। 9.8 × h। ਨਾਓ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਹੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ h ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 10 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 10। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ v = u + at। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ s = ut + ½ at²। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ h ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ g ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ v ਵੀ ਪਤਾ, u ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ g ਵੀ ਪਤਾ, ਸੋ t ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ v = u + at, a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ g ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1.428 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਡਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਅ ਸਟੋਨ ਲੈਫਟ ਫਰੋਮ ਦ ਟੋਪ ਆਫ ਦ ਟਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 24.5 ਮੀਟਰ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਫ ਇਟਸ ਫਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਟਾਵਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਆ ਲੈਫਟ ਫਰੋਮ ਦ ਟੋਪ ਆਫ ਅ ਟਾਵਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ 0 ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਇਜ਼ 24.5 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 24.5 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ SNth। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ SNth ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 24.5 ਮੀਟਰ। ਡਨ। ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਅ ਫਾਲ ਇਟਸ ਫਾਲ, ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਟਾਵਰ ਦੀ। ਡਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ s = ut + ½ gt²। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਸੋ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ 9.8 ਜਾਂ ਫਿਰ 10। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ nth ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ s = u + a/2 2n - 1। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਥ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ nth ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀਆਂ। S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 24.5, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0, u, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 / 2 2n - 1। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਗਿਵਨ ਆ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। 3 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ। n ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ 3 ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ s = ut + ½ gt²। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। s ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ s ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ h ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0, ਹਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ½, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਸੋ 3 × 3, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ 44.1 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ।
नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ अ Aquarius from which light takes 3 into 10 raised to power 9 years to reach the earth। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ 3.9 ईयर्स ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ डिस्टेंस कवर, मतलब इन्ना टाइम लग्या। सो असी डिस्टेंस पता करना। सो स्पीड ऑफ लाइट स्टैंडर्ड वैल्यू आ गिवन आ ठीक है, नहीं गिवन तो 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड वैल्यू आ बच्चे। सो इनू एज सच तुसी लर्न कर लेना। सो यदि कैलकुलेशन किद्दां करांगे बच्चे, सानू पता वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदा डिस्टेंस ओवर टाइम। हुण उन्होंने क्या वट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना लग गया। सो डिस्टेंस इधर ही पिया रहन दो, टी उधर ले जाओ। वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है 3 into 10 raised to the power 8, टाइम कितना लग गया 3 into 10 raised to the power 9। सो सारी प्रॉपर कैलकुलेशन बच्चे कर लो। जो तुसी कैलकुलेशन करके हटोगे तो इस तरीके नाल जिहड़ा तुहाडा आंसर आ जाऊगा। पहली गल, अगर बच्चे जिहड़ा तुहाडी स्पीड आ मीटर पर सैकेंड आ, तो टाइम भी सैकेंड्स दे विच होना चाहिए, जबकि उन्होंने ईयर्स दे विच दिता होया। ईयर्स तो असी टाइम किद्दां कन्वर्ट करांगे, आ टर्म एज सच लिख दित्ती। 365 एक साल दे विच 365 दिन हुंदे आ। एक दिन विच 24 घंटे, 24 घंटे च 60 मिनट ते 60 मिनट च 60 सैकेंड्स हुंदे आ। जदों आ सारी टर्म नूं मल्टीप्लाई करांगे तो सैकेंड्स दे विच आंसर आ जाएगा। डन। सो सी दी वैल्यू 3 into 10 raised to the power 8 ते टी दी वैल्यू 9.46 into 10 raised to the power 16। डन। सो मीटर्स दे विच बच्चे साडा आंसर आ जाएगा, बट सानू ऑप्शन दे विच उन्होंने किलोमीटर दे विच पुछया आ, इस करके आ सारी टर्म नूं असीं 1000 दे नाल डिवाइड कर दिता तो साडा किलोमीटर्स दे विच आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट आ जाओ, अ कार हैज़ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब थानू यू गिवन आ। हुण अगेन किलोमीटर पर सैकेंड आ, जदों भी किलोमीटर पर सैकेंड होवे तो असीं 5/18 दे नाल की कर देना, इनू डिवाइड कर देना। सो हुण तुसीं 2 दे टेबल ते सब तो छोटा टेबल 2 आ, सो 2 तो कटना स्टार्ट कर दो। सो अगे 3 ते कटिंग कर दो, 3 1 3, 3 4 12, सो 4 5 20। सो यू दी वैल्यू तुहाडे को कितनी आ गई 20 मीटर पर सैकेंड। इट्स एक्सेलरेशन गिवन आ 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब वी पता करो, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड बाद उन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस मतलब एस वी पता करने लिए क्या इत्थे दो चीज़ां पता करनियां, एक वेलोसिटी और एक डिस्टेंस। सो वेलोसिटी पता करने दे लिए बेसिक साडे को फॉर्मूला हैगा आ वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हुण वी असीं पता करना, यू तुहानूं कितना गिवन है 20, एक्सेलरेशन बच्चे तुहानूं कितनी गिवन है 2 ते टाइम कितना लग गया 3 सेकेंड। 3 2 6 प्लस 20 तो कितना आ गया 26 मीटर पर सेकेंड। आ थोड़ी वेलोसिटी आ गई। सो 26 बच्चे आ रहा 26 मतलब कि ए और सी जो कोई आंसर होएगा। नेक्स्ट असीं पता करना है कितना डिस्टेंस लग गया एंड डिस्टेंस। हुण बच्चे डिस्टेंस के लिए साडे को दो फॉर्मूलेज आ, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2AS। ठीक है जी। हुण तुहानूं एक्सेलरेशन भी पता ते यू भी पता, वी भी पता, चाहे असी वी हुण निकाल लिया पर पता है इत्थों। सो इत्थों भी एस निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हुण देखो यू भी पता, टी भी पता, एक्सेलरेशन भी गिवन है, टी भी पता। सो बच्चे बेसिकली आ फॉर्मूला लगा लो तो ज़्यादा बैटर आ। रीज़न की है इहदा, जिहड़ा वी आ ये असीं खुद कैलकुलेट करके हटे हाँ। हो सकदा साडे वी च जदों असीं कैलकुलेशन कीती तां साडी गलती होगी, अदरवाइज तुसी दोनों चो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर ट्राई करो कि आ वाला फॉर्मूला लगाओ ताकि सारा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आ। हुण इनू सॉल्व करके देख लो। सो इन्होंने भी बच्चे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाला ही लगाया आ, क्योंकि असी इदा का फॉर्मूला चूज़ करना हुंदा आ कि जित्थों साडा एरर आने के चांसिस घट होण। अदरवाइज तुसी दूसरा पहले वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो चलेगा। सो सारी वैल्यूज़ पुट करो तो एस का वैल्यू आ जाऊगी 69 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब रेस्ट तो स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होएगी 0। नेक्स्ट आ एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक्वायर्स वेलोसिटी मतलब वी इन्नी एक्वायर की 5 सेकेंड्स दे विच, मतलब टी गिवन आ 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस जी पता करनी। सब तो पहला बेसिक फॉर्मूला चकते हैं, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी कितना 12, यू कितना 0, एक्सेलरेशन असी पता करनी, टाइम कितना आ 5। सो आ गया 12 इज इक्वल्स टू ए 5, 5 1 5, 5 पॉइंट से विच आ जाएगा 1.4। ठीक है जी,
सॉरी 2.4 मीटर पर सैकेंड। सो तुहाडा एक्सलेरेशन कितना आ गया 2.4 मीटर पर सैकेंड। डन। नैक्सट असी डिस्टेंस पता करनी आ। हुण बच्चे डिस्टेंस दे अगेन साडे कोल दो फॉर्मूले आ, उन्हां दे विचों असी एक फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट कीतियां, कैलकुलेट किया तो साडा आंसर आ गया। नैक्सट बच्चे सेम ये नाल दा क्वेश्चन आ, अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। हुण इन्नी वेलोसिटी दे नाल चलदा पिया आ, पर उन्होंने ये नहीं दसिया इनीशियल आ कि फाइनल आ। जो बच्चे चल इदा का कोई क्वेश्चन होवे तो अगली स्टेटमेंट पढ़ो, इट्स वेलोसिटी इज़ रिड्यूस्ड टू, यदा मतलब पहली वाली हो गई इनीशियल वेलोसिटी तो हुण रिड्यूस होके फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। हुण इत्थे किलोमीटर पर आवर नूं पहलां की करना मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करना। किद्दां कन्वर्ट करांगे 5/18 दे नाल डिवाइड कर देना। सो सीधा कट के आ गया 4 2 ज़ा 20 मीटर पर सैकेंड। 36 नूं करो जी 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, सो 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सैकेंड। सो साडे को दो वेलोसिटीज़ आ, इनीशियल वेलोसिटी 20 ते फाइनल वेलोसिटी 10 आ। कहते कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एस थानू गिवन आ। रिटार्डेशन का मतलब होंगी है नैगेटिव एक्सलेरेशन जिहड़ी आ तुसीं पता करनी आ। हुण देखो नैगेटिव एक्सलेरेशन मतलब v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। बच्चे दूसरा फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, उत्थे टी नहीं सानू पता, इस करके वो वाला फॉर्मूला असीं अप्लाई कर ही नहीं सकते। सो रह गया आही फॉर्मूला, v की वैल्यू भी पता, u भी पता, t भी पता, एक्सलेरेशन ही पता करनी है तो उन्होंने सॉल्व करके देख लो। बट इत्थे रिटार्डेशन क्या, इट मीनस कि 100% श्योर आ कि एक्सलेरेशन नैगेटिव दे विच आएगी। देख लो तुहाडा आंसर नैगेटिव दे विच आ रहा आ -75। अगर नैगेटिव च नहीं आ रहा यदा मतलब वो एक्सलेरेशन आ जाएगी, वो रिटार्डेशन नहीं होएगी। सो तुहाडी कैलकुलेशन च किते ना किते मिसटेक आ, सो उन्नू ध्यान नाल चैक कर लेना। बेसिकली रिटार्डेशन का मतलब की हुंदा आ नैगेटिव एक्सलेरेशन। ठीक है जी। नैक्सट आ जाओ, वट इज़ द एंगल ऑफ 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स। असी एंगल पता करना आ। सो देयर रिजल्टेंट इज़ 4 न्यूटन। रिजल्टेंट सानू गिवन आ 4 न्यूटन। जो भी रिजल्टेंट होवे इहदा मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन के फॉर्मूले यूज़ करने हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सो दोनों के विचार का आंसर की आता आ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। कुछ बच्चे स्कूल क्लास टीचर ने r इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा ने कराया होएगा। कुछ टीचर्स ने कराया होएगा r इज इक्वल्स टू √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। सो जो तुसी शुरू तो पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला उही फॉलो करो। मैं अपनी क्लास के बच्चे ऑलवेज r इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा करवानी हाँ। सो मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी। अगर थोड़े टीचर्स ने थानू pq दे नाल करवाया, मैं थानू सुजैसट करदी हाँ बच्चे उही फॉर्मूला यूज़ करो। हमेशा सेम फॉर्मूला सेम जिहड़ी आ सिंबल्स लैके करो ताकि थोड़ा दिमाग कन्फ्यूज़ ना होवे दो वेरीएबल्स दे विच। अदरवाइज गल्लां उही आ, असी वेरीएबल्स दे विच फसना नहीं आ। हुण दो फोर्सिस आ, मतलब ए गिवन आ 2, बी गिवन आ 3, रिजल्टेंट मतलब आर गिवन आ 4। आर की जगह तो असी की पुट कर दिता 4, ए की जगह तो असी की पुट कर दिता 2, बी की जगह तो 3, ए की जगह तो 2, बी की जगह तो 3। सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आ दोनों नूं ऐड किया तो 13। हुण आ कॉज वाली टर्म आ बच्चे, इनू इहदे नाल ऐड नहीं कर सकते। हुण आ इक्वेशन फरदर सॉल्व नहीं हो रही, असी की कीता दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिता। जो दोनों तरफ स्क्वेयर करांगे 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। इधर जो स्क्वेयर करांगे तो स्क्वेयर ने अंडर रूट नूं कैंसल आउट कर दिता। फाइनली साडे कोल सिंपल टर्म बच गई 13 प्लस 12 cos थीटा। हुण देखो 13 दूसरी तरफ लै जाओ, ठीक है। सो आ गया 3, आ वाला 12 इहदे पैरा च लै जाओ, कट के आ गया 1/4। तो थीटा का आंसर कितना आ गया cos इनवर्स 1/4। सो ऑप्शन देख लो cos इनवर्स 1/4, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डन। सो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग जोड़े MCQs आ ये वाले ध्यान ना करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, पेपर विच आने चांसिस भी ज़्यादा होंगे आ। नैक्सट क्वेश्चन आ बच्चे सेम क्वेश्चन आ, सिर्फ उन्होंने की किया है, वट इज़ द एंगल बिटवीन द 2 वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैगनीट्यूड। इक्वल मैगनीट्यूड का मतलब की है जिन्हों का साइज़ बराबर होएगा। इसका मतलब ए वैक्टर इज इक्वल्स टू बी वैक्टर, इन्हों का साइज़ बराबर होएगा। मैगनीट्यूड इज़ 2π/3। उन्होंने किया वैन द एंगल इज़, यदा मतलब आ एंगल गिवन आ, मैगनीट्यूड नहीं गिवन है,
एंगल गिवन आ द मैगनीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू असी ए और बी की वैल्यू पता करनी आ हुण ए और बी दोनों बराबर आ इहदा मतलब आर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला की आ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बी की जगह पर भी लिख दिता ए स्केयर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा सो आ दोनों नूं ऐड किया गया 2 ए स्केयर ए नूं ए नाल मल्टीप्लाई किया 2 ए स्केयर 2 एस एच आ बच्चे ए नूं ए नाल मल्टीप्लाई किया ए स्केयर कॉस थीटा हुण 2 ए स्केयर जिहड़ा आ असीं कॉमन बाहर निकालता कॉमन बाहर निकाले अंदर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा ठीक है जी सो इत्थे तक हो गया बच्चे 1 प्लस कॉस थीटा थीटा की वैल्यू असीं पुट कर दी 2 पाई ओवर 3 हुण बच्चे 2 पाई नूं किद्दां सॉल्व करांगे पाई की वैल्यू हुंदी आ 180 पाई मतलब कितना हुंदा 180 सो 3 1 जा 3 3 6 जा 18 सो 120 डिग्री कॉज 120 डिग्री कॉज 120 की बच्चे वैल्यू कितनी हुंदी आ -1/2 इनू याद किता करांगे कॉस 60 की वैल्यू हुंदी आ 1/2 कॉज 120 तो नेगेटिव हो जाऊगा उल्टा हो जाऊगा दैट इज़ -1/2 सो असी 1/2 जी है वैल्यू पुट कर दी ये वैल्यू 1/2 पुट कर दी 2 दे नाल 2 कैंसल 2 पी चो बच्चे 1 पी घटा दिता तो कला पी स्केयर आ गया स्केयर के नाल अंडर रूट कटिया गया आर जिहड़ा आ वो पी दे इक्वल हो जाएगा ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना रिजल्टेंट होएगा गिवन आ उन्ना ही तुहाडी ए बी दी मैगनीट्यूड होएगा सो चाहे तुसी आर इक्वल्स टू पी लिख दो चाहे हुण इत्थे ऑप्शनस देखो ट्रिपल ऑफ आइदर एक दूसरे तो ट्रिपल मतलब 3 गुणा हो गया डबल नहीं है आइदर ऑफ देम नन ऑफ दीज आइदर ऑफ देम मतलब उन्हां विचों बराबर आ अदरवाइज बच्चे तो ऑप्शन पूछनी चाहिए सी इट इज़ इक्वल टू द रिजल्टेंट सो आइदर ऑफ दैम का मतलब की है एक दूसरे के बराबर आ सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है बच्चे दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मैगनीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वैक्टर्स पी एंड क्यू आर गिवन इज दिस वट इज़ द एंगल बिटवीन पी एंड आर पी तो आर के विचकारला असीं एंगल पता करना सो रिजल्टेंट आर के इक्वल होएगा अंडर रूट बच्चे हुणे ते पी क्यू लिता तो पी क्यू वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना पएगा कॉस थीटा हुण ध्यान दिओ असी अगर स्केयर हटा दिए दोनों पासे स्केयर लगा दिए तो साडे को आ टर्म हो जूगी मतलब कि अंडर रूट कटिया गया उन्होंने सानू कहा कि जिहड़ा आर स्केयर आ वो किहदे इक्वल आ आर स्केयर किहदे इक्वल आ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू आ टर्म एस सच लिख दो ठीक है आर की वैल्यू पुट की होर कुछ नहीं किया सैकेंड स्टैप दे विच सो कन्फ्यूज़ नहीं होना सो आ वाला पी ना कटे गया क्यू ना कटे गया फाइनली 2 पी क्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ स्टैप सब नू क्लीयर हो गया बच्चे दोबारा समझाती हाँ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा अगर अंडर रूट नहीं लगाने तो दूसरे पासे स्केयर लगा सकते हैं इत्थे आर की वैल्यू कितनी गिवन आ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर हुण क्लीयर हो गया देन आ टर्म एस सच लिख दी पी स्केयर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा पी स्केयर ना पी स्केयर कैंसल क्यू ना क्यू कैंसल इधर आ गया 1 इज इक्वल्स टू 2 पी क्यू कॉस थीटा सो आ टर्म आ गई ठीक है जी अगर थोड़े को आ टर्म आ जाती आ तो पी क्यू सो बच्चे इतने 0 आ गया सॉरी माइनस हुण 4 चो 4 माइनस किते 0 इसी तरह पी स्केयर माइनस किया तो 0 इतने 0 आ जाएगा यदा मतलब कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 पी क्यू किसी को भी डिवाइड करूँगे तो आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा यदा मतलब कॉस थीटा 0 आ गया कॉस थीटा की वैल्यू 0 कदों हुंदी आ कॉस थीटा की वैल्यू 0 कदों हुंदी आ जो थीटा जिहड़ा आ तुहाडा 90 डिग्री का होवे सो आंसर आ जाऊगा ए 90 डिग्री डन सो अगे फरदर सॉल्व किया होया तुसीं देख सकते हैं नैक्सट क्वेश्चन आ कहते 2 फोर्सिस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी 10 ते 6 न्यूटन जोड़ा है किसी बॉडी के उत्ते एक्ट कर रहा द डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अननोन असी डायरैक्शन ऑफ फोर्स पता करनी आ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी मे बी बिटवीन विच लिमिट्स तो किहड़ी लिमिट हो सकती है बच्चे एक मैक्सीमम हो सकती है तो एक मिनीमम हो सकती है सो सब तो पहला असी की कीता सानू जड़ियाँ आ 2 फोर्सिस गिवन आ ए और बी 10 ए गिवन आ 10 तो बी गिवन आ 6 असी सिंपल फॉर्मूला लगाया आर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा ए की जगह ते 10 बी की जगह ते 6 सो इत्थे आ जाऊगा 2 10 इंटू 6 सो आ सारे नू सॉल्व किया तो 120 आ गया आ दोनों नू सॉल्व किया तो 136 जमा 120 गुणा कॉस थीटा हुण सानू पता मैक्सीमम कदों होएगा
ਜਦੋਂ +1 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ 0 ਜਾਂ ਫਿਰ -1। ਸੋ ਅਸੀਂ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 16। ਤਾਂ ਆਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 4। ਮੈਕਸੀਮਮ ਦਾ ਮਤਲਬ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ +1। ਜਦੋਂ +1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 120 ਨੂੰ 136 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 256 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 16 ਨਿਊਟਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟਸ, one of magnitude 3 meter and another of magnitude 4 meter. How the distance vector should be combined to get a resultant displacement of magnitude 7 meter. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 3 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ, ਅਨਦਰ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 4 ਆ। ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਆਰ ਆ ਉਹ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਆ, ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਕੁਅਰ + B ਸਕੁਅਰ + 2AB cos ਥੀਟਾ। ਆਰ ਵੀ ਪਤਾ, A ਵੀ ਪਤਾ, B ਵੀ ਪਤਾ, ਥੀਟਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। 13th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਆ ਡਿਟੋ, ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਆ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7। ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਮਤਲਬ cos 60 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। cos 60 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/2। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਆਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆ। 14th ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਈਵਨ ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਮਤਲਬ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਫੋਰਸਿਸ ਆ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ 144 ਡਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1414। ਫਾਈਂਡ ਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਈਚ ਫੋਰਸ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਕੁਅਰ + B ਸਕੁਅਰ + 2AB cos ਥੀਟਾ। ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, P ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਸ F ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ X ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ X, PQ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ X। cos 90 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 0, ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ ਆਹ ਟਰਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 2x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ √2 ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ √ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ x। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਮ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ √2 ਨੂੰ √2 ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 1000 ਡਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਵਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3/2। ਹੁਣ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 2/3 ਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਆਈਦਰ ਫੋਰਸ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਰ ਕਿੰਨਾ 3/2, ਆਈਦਰ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ x। ਫਾਈਂਡ ਦ ਕੋਸਾਈਨ ਐਂਗਲ, ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ, cos ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੇਮ ਆ ਬੱਚੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਟ ਵਾਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ A + B ਐਂਡ A - B। ਹੁਣ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਲਿਖਣਾ ਤੇ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਟਰਮ, ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ R ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ √3 A ਸਕੁਅਰ + B, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਆ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ, P ਤੇ Q। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, √ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਆਹ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖੋ ਜੀ A + B ਸਕੁਅਰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ A ਸਕੁਅਰ + B ਸਕੁਅਰ + 2AB cos ਥੀਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ A ਸਕੁਅਰ + B ਸਕੁਅਰ - 2AB cos ਥੀਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
आ वाली टर्म ना कटेगी a प्लस ए 2a b प्लस b 2b आ टर्म एज सच लिख दी। हुण आ वालियां सारियां टर्म्स दूसरे पासे लै जाओ तो इधर जाके सॉल्व कर लो तो आ टर्म आ गई, आ वाली टर्म ना कैंसल आउट होगी। सो आ वाला 2 दूसरी तरफ गया तो बन गया cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। 1/2 की वैल्यू कदों होंदी है थीटा की, जदों कि 60 डिग्री होवे। सो थीटा आंसर आ गया तुहाडा 60 डिग्री। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वैक्टर इज, बच्चे हुण कंपोनेंट गिवर आ, ठीक है। कंपोनेंट का की मतलब हुंदा, एक तुहानू cos थीटा गिवन आ और एक तुहानू sin थीटा गिवन आ, या Vx गिवन आ ते Vy गिवन आ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लैंदे आ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिस इज दिस, फाइंड द अदर कंपोनेंट, तो सानू दूसरा कंपोनेंट जिहड़ा आ पता करना पएगा। हुण ध्यान दिओ बच्चे, उन्होंने क्या, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 100, मतलब कि मेन वेलोसिटी इन्नी आ, उहदे विचों एक कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी आ, इन्नी। सो आ Vx हो गई, आ मेन वेलोसिटी आ V। सो फॉर्मूला की हुंदा बच्चे, V स्केयर इज इक्वल्स टू Vx स्केयर प्लस Vy स्केयर। हुण V की वैल्यू कितनी गिवन आ 100 ते Vx की वैल्यू तुहानू कितनी गिवन आ 50। सो इन्होंने सॉल्व किया इस तरीके दे नाल, तो Vy निकाल ली 7500। सो स्केयर नू दूसरी तरफ लैके जाऊँगी तो अंडर रूट आ जाएगा, तो बन गया 50/√3, ठीक है जी। नेक्स्ट, अ बम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ एरोप्लेन व्हेन इट इज अ डायरेक्टली अबव द टारगेट एट द हाइट ऑफ द 1500 मीटर। सो हाइट 1500 मीटर है, मतलब H गिवन है या S गिवन है। द एरोप्लेन इज गोइंग हॉरिजॉन्टल विदिन स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, बाय हाउ मच डिस्टेंस वुड द बम्ब मिस द टारगेट, कित्थे जाके जोड़ा थोड़ा बम्ब आ वो टारगेट मिस करेगा। सो इनीशियल वेलोसिटी बच्चे ऑलवेज 0 लवांगे, फाइनल वेलोसिटी 1500 जी उन्हें डिस्टेंस कवर की, तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 यूज़ करांगे। सो टोटल हाइट कितनी आ, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S की जगह तो असी की यूज़ करांगे 1500, इनीशियल वेलोसिटी 0, एक्सलरेशन कितनी आ 9.8, सारी वैल्यूज़ पुट करो तो तुहाडे टाइम का एक टर्म आ जाएगी। दैन तो उत्थों उन्होंने की किया आ कि टाइम तो बाद असी हॉरिजॉन्टल उन्हें कितना जड़ा डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ 500 किलोमीटर। लास्ट विच लाइन देखो, द एरोप्लेन इज गोइंग हॉरिजॉन्टल विदिन स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर गई आ, तो असी की किया 500 किलोमीटर नू पहला मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट किया। असी टोटल डिस्टेंस कवर करना आ, टोटल डिस्टेंस वेलोसिटी बच्चे कि इक्वल होंदी है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस की होएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी लगी 138.9 इंटू टाइम कितना लगे 17.5, दोनों नू मल्टीप्लाई किया तो साडे को फाइनल आंसर आ गया। डन। नैक्सट, अ शैल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब कि थीटा गिवन आ तुहाडे को, थीटा इक्वल्स टू 30। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मतलब आ वाली वेलोसिटी जिहड़ी आ Vx आ वो कितनी गिवन आ 196। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब T, हॉरिजॉन्टल रेंज H ते मैक्सिमम हाइट, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज R ते मैक्सिमम हाइट H पता करो। बच्चे प्रोजैक्टाइल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सो फॉर्मूला की सी थोनू ट्रिक दसिया होया आ, तुम रॉक स्टार हमारी। सो T मतलब 2u sin थीटा ओवर G। सो सेकेंड स्टैप दे विच R, तुम रॉक स्टार हमारे, R पहला आएगा। सो U स्केयर चक्या गया, इत्थे आ जाऊगा स्केयर, मतलब इत्थों शिफ्ट हो गया, जितों भी शिफ्ट होएगा उत्थे स्केयर बन जाएगा। U स्केयर साइन, नैक्सट स्टैप विच शिफ्ट हो गया थीटा ओवर G। H की जगह तो की होगा आह 2 इत्थों शिफ्ट हो गया नीचे चल जाएगा तो 2H तो इत्थे स्केयर बन जाएगा, ठीक है जी। सो कल्ले फॉर्मूले दे विच हुण फॉर्मूले तुहानू ट्रिक दस दित्ती, सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी आ, तो पुट करनी सीख लो। हुण देख लो T इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा ओवर G, थीटा की वैल्यू कितनी आ 30, सो sin 30। बाकी तो सारी बच्चे कैलकुलेशन ही आ। sin 30 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 नीचे आ गया, तो इनू सॉल्व किया 20 सैकेंड। नैक्सट R की वैल्यू आ u स्केयर sin 2 थीटा। हुण इत्थे बच्चे ध्यान नाल देख लो, sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 30 नू 2 नाल मल्टीप्लाई किया 60, मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी होएगी √3/2, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन आ सॉल्व कर लेना। नैक्सट आ अगेन sin थीटा, सिर्फ आ चीज़ां बच्चे ध्यान देने वालियां आ। sin स्केयर थीटा मतलब sin स्केयर 30, बच्चे sin 30 की वैल्यू कितनी होंदी है 1/2, उपर स्केयर आ तो इत्थे स्केयर आ जाना, इसदा मतलब 1/2 असीं 2 बारी लिख रहे हैं,
क्लीयर होगी। काफ़ी बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहिंदी आ कि थीटा 'च वैल्यू किद्दां पुट करनी तो उन्होंने सॉल्व किद्दां करना। कई बार आही बच्चे 2 साइन स्केयर थीटा नूं इत्थे मल्टीप्लाई कर देंदे आ 60 कर देंदे आ। साइन स्केयर थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू पुट करके उन्होंने स्केयर कर दिता। डन। बाकी तो कैलकुलेशन ही आ बच्चे कर सकते हैं तुसी। नैक्सट अ स्टोन टायर्ड टू अ एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 मीटर लॉन्ग विद अ वायर रैप्ड इन अ हॉरिजोंटल सर्कल विद अ कॉन्सटेंट स्पीड। ਅਸੀਂ कोई स्टोन बन्निया इन्नी स्पीड के नाल ਅਸੀਂ मूव करवा रहे हैं। द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन। उन्होंने 14 वार ਅਸੀਂ घुमाया। हत्थ ਵਿੱਚ बच्चे एक ਤੁਸੀਂ ਬੱਟੀ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। 14 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਤਾਂ 25 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ 80 ਮੀਟਰ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ 0.8 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। टाइम कितना लग्या 25 सकेंड ते 24 रेवोल्यूशनस। ठीक है। सो आ गया थोड़ा टाइम। नैक्सट आ ओमेगा के इक्वल होंदा 2 पाई ओवर टी। सो 2 पाई ओवर टी की वैल्यू पुट करो 25/24। इनू सॉल्व किया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। 24 बच्चे ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे ही रहेगा। ठीक है। 7 1 7 7 2 14। सो सारी टर्म में सॉल्व किया 88/25 आ गया। हुण एक्सलरेशन पता करनी है। ए के इक्वल होंदी है ओमेगा स्क्वायर आर। सो ओमेगा भी तुहानूं पता और आर भी पता। सो वैल्यूज़ पुट करो, तुहाडा फाइनली आंसर आ जाएगा। नैक्सट आ व्हील इज़ बच्चे आ वाले क्वेश्चन जोड़े एक्सलरेशन वाले क्वेश्चन आ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। तुहाडे सितंबर एग्जाम दे विच भी इदां दे क्वेश्चन आए आ और ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਅ ਵੀਲ ਇਜ਼ 0.6 ਮੀਟਰ ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਗਿਵਨ ਆ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਸਪੀਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਆ ਫਾਈਂਡ ਦ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ। ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ मतलब ओमेगा तुसी फाइंड आउट करना। सो बच्चे वेलोसिटी के इक्वल होंदी है ओमेगा आर दे। इत्थों ओमेगा निकाल लो, आर उहदे पैरां 'च चला गया V ओवर आर। सो वेलोसिटी कितनी आ 10 मीटर और आर कितनी आ 0.60। सो वैल्यूज़ पुट करो तो उन्होंने सॉल्व करो, तुहाडा आंसर आ जाएगा। नैक्सट आ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। बच्चे आ वाला क्वेश्चन जोड़ा है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आ। आई थिंक ये तुसी ईजीली सॉल्व कर लूँगे। सो खुद ट्राई करके देखो, नहीं होएगा तो कमेंट सैक्शन दे विच दे देना बच्चे, तुहानूं नैक्सट वीडियो दे विच मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। बच्चे इस पूरे वीडियो दे विच किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होएगी क्योंकि अपनी सीरीज़ इदां ही चल रही है। अज एक्यूरेट दे बच्चे आपां एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। सो आपां 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इस वीडियो दे विच। नैक्सट वीडियो दे विच बच्चे नैक्सट MCQs जिहड़े आ न्यूमैरिकल बेस्ड जिहड़े MCQs आ वो डिस्कस करांगे। इन्हां 25 क्वेश्चन च अगर तुहानूं किसी भी MCQs की कैलकुलेशन च प्रॉब्लम होवे या किसी तरह की समझण च प्रॉब्लम होवे कमेंट सैक्शन दे विच दे देना। कल दी वीडियो दे विच तुहाडी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नैक्सट देख लो क्वेश्चन आ ए दी वैल्यू बी दी वैल्यू तुहानूं गिवन आ। लेंथ ऑफ A प्लस बी ते A माइनस बी जिहड़ी आ पता करनी। A प्लस बी मतलब A नूं B दे नाल ऐड कर दो। 3 प्लस आई नूं ऐड कर सकते हैं, जे नूं जे वाली टर्म के नाल ऐड कर सकते तो के नूं के वाली टर्म के नाल। हुण देखो ए नूं ए वाली ने ऐड किया तो साडे को आ गया 4i। जे नूं जे वाली नाल कट्टिया गया जदों ऐड किया प्लस 3k आ ऐड करके आया। जदों ऐड किया तो इहदा मैगनीट्यूड भी सानूं निकालना पएगा। मैगनीट्यूड का की मतलब हुंदा अंडर रूट ते इस कंपोनेंट का स्केयर 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 तो आ गया 25 का अंडर रूट। सो सॉल्व करके आ गया 5। सो पहले का आंसर आ गया 5। सो सीधा सीधा बी जिहड़ा है ऑप्शन करैक्ट आ क्योंकि होर किसी च 5 पहली ऑप्शन 5 नहीं आ। सिमिलरली माइनस ए चो बी माइनस किया 3 चो 1 माइनस किया 2i। जे चो जे माइनस किया इत्थे माइनस माइनस प्लस हो जाना प्लस 4j। ए चो आ माइनस किया माइनस 3k। सो इहदा अंडर रूट लवांगे तो मैगनीट्यूड लवांगे। इहदा स्क्वायर किया 2 2 ज़ा 4, इहदा स्क्वायर किया 6 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। सो ये आ गया अंडर रूट 29। सो आ गया अंडर रूट 29। डन। सो आ रहा थोड़ा 29। नैक्सट आ जाओ 24th क्वेश्चन आ वो कहते फाइंड द यूनिट वैक्टर। हुण तुसी यूनिट वैक्टर पता करना। बच्चे यूनिट वैक्टर किद्दां पता करीदा आ? ए वैक्टर रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर दिस एंड दिस।
फाइंड द यूनिट वैक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, जोड़ा रिजल्टेंट दे पैरेलल होवे। बच्चे रिजल्टेंट का मतलब की हुंदा आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ਇਹਦਾ मतलब दोनों टर्म्स ਨੂੰ ਐਡ करना पऊगा। आई ਨੂੰ आई ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 4i, जे ਨੂੰ जे ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ प्लस माइनस माइनस क्योंकि 5 ਵੱਡਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ जे, के ਨੂੰ के ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ -2 ਵੱਡਾ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ के, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਤਾ, यूनिट वैक्टर पता करना मतलब एन कैप पता करना। किद्दां पता करांगे? ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर मैगनीट्यूड ऑफ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, मतलब जो भी आंसर आया वो ऐसा उपर टर्म लिख दी। ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड मतलब 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ √18, √18 ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3/2। आई होप बच्चे मेरी थोड़ी जी मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन फास्ट कर रही हाँ बिकॉज टाइम घट आ, थोड़ी जी स्पीड इनक्रीज आ, तो जिथे भी कुछ ना समझ लगे तो पूछ लेना। 25th क्वेश्चन बच्चे शूट वाला ही आ। अ शूट इज़ फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनीशियल वेलोसिटी थानू यू गिवन है, सो थानू यू गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। बच्चे आ चीज़ का ध्यान रखना, वर्टिकल हमेशा जोड़ा एंगल हुंदा आ वो हॉरिजोंटल हुंदा। इन्होंने हुण वर्टिकल गिवन आ 60, सो 90 चो 60 माइनस किए तो 30, क्योंकि सानू सारे फॉर्मूले च हॉरिजोंटल वाले एंगल का पता आ, सो असी एंगल निकाल लिया 30। उन्होंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ते हॉरिजोंटल रेंज पता करो। ਇਹਦਾ मतलब टी की वैल्यू, यू की वैल्यू तो आर की वैल्यू। थीटा क्लीयर हो गया कि 30 डिग्री किस तरीके ਨਾਲ पुट करना। सो सारी कैलकुलेशन करके ਜਿਹੜਾ THR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੈਨ 26 ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ MCQs ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਔਰ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਦ ਰਿੰਪਲ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।